So actually what we call it as a project work, isn't it? As per our syllabus, we call it as a project work, although this is actually bigger one. The smaller one we call them as a dissertations. But anyway, the thing is, you have to carry it out to hospital, is first thing. Now, so Yes. far we have not received any permission that we can start it. Okay, we can start college. So until and unless it is there, what's your guideline? Last guideline which we received, it was there that UGC that if state governments are agreed, then it can be only 50% of the college. Now, it is difficult for the college to select 50%. How it can be 50%? How we can have 50%? So there are many such things. There is ambiguity until and unless these are directed. We had a talk over there. I had a discussion, but if you wish, you could have had a talk with sir also, principal sir, so that he can guide you in that way. So this is the reason actually that we cannot go. Now if you have to do the work, project work in a hospital, then until and unless you can able to join a hospital, you cannot do any kind of project. What is the first thing? Second thing is what, once you go into hospital, then we have made the groups. Already we are ready for everything. We have made the groups. Even your college this supervisor list is ready with me only. We have to alert them as a group wise. Is second thing. Third thing is there, once we join the medical college, then medical college they will be appointing a preceptor for your group. For each group there will be one preceptor. Now this preceptor is supposed to assign you the topic. Usually the supervisor assigns, this preceptor assign the topic which are feasible in the hospital condition, and this they are of interest of that particular preceptor. If many times preceptor is working in that area, or preceptor is having some idea about that particular thing, what it is there. So until and unless the hospital allows us, or this all the situation is in such a way that you can go to hospital, everything is starting, then this once you reach to hospital, then we can request them, because everything every year the procedure is same. We request them for assigning the preceptor. The preceptors are assigned, then we inform you the names of these preceptors. So group A, group B, group C, group D, whatever groups are there, they receive the preceptor, and then this preceptor will assign the topic. Now once the topic is assigned, then the group, whatsoever 3-4 students group is there, that will work for writing the details. That is what we call it as a writing protocol, referring various articles, various things, and on that basis they will write the protocol. This protocol is checked by both the supervisor, that is college supervisor and preceptor. Then this protocol is submitted to the ethics committee approval, because without ethics committee approval we cannot go for any kind of human research. So this is submitted for this protocol is submitted. Now I remember Pradeep has had a conversation with me on this topic. So these all things are there. Actually, as per my knowledge, there are multiple times the ethics committee meetings are conducted. Now whenever the meetings are conducted, before that we should keep our protocols ready. Even the hospital people will guide you about it. All these those preceptors are there, because there are most of these are the senior faculties. So they will guide you that, because they will get notification from the ethics committee section that so and so is the last date of that. So by that time you can go for. I can understand your concern that you feel that you are at home, you can do some work and you can keep your protocol ready, or maybe something ready. But then the protocol, as they are to be made on the basis of the ground situation over there. It means for making protocol, what you will need is, first thing is what kind of project you are getting. Second thing you will need is then what are the parameters which are to be considered for that, which parameter has to be accepted, which parameter has to be put in, because the parameter you can take only, these are the parameter which are possible over there.
You cannot go for anything which is not possible over there. You cannot go. And these even PCI syllabus, if you say, it does not mention that you go for something beyond which is not possible. It is not a PhD thesis. It is a project work which is supposed to be done for around 4 to 5 months or 6 months and submit the report. Even PCI do not call it as a what we can say. Rather, I'll just put, if you wish, I can present it. So I can present the copy of syllabus so that it will be easy for you. Just a minute. Yes. Omkar, can you allow me to share? It is somewhere, it is not taking. Let me check again. Uh, I think I am already allowed, but it is not. yes, sir. There is no issue from Okay, this okay, side. okay, okay. Just a minute. Yes, it is there. Now, can you see it? Yes, sir. Fine. See, very first instance is there. It says project work for 6 months. Okay. Then we go ahead. It shows project work for 6 months. That is 100 marks. Then how it is to be done? In the every student shall. Okay. This is a project work. What is the theme behind it? To develop the data collection and reporting skill in the area of community hospital and clinical pharmacy, project work shall be carried out under supervision of teacher. Project topic must be approved by the HOD or HOD of the institutions. The same shall be announced by the student within 1 month of commencement of 5th year classes. Project work shall be presented in a written report and seminar of the end should be taken. It shall comprise objective of the work, methodology, result and discussion and conclusions. Objectives of the project work is to show the evidence of having made some accurate description of published work of others, develop students in data collection, analysis, reporting and interpretation skill. So these are basic objectives. What you have to do is, students shall work in group of not less than 2 and not more than 4 under an authorized teacher. I hope you this understood. Akash Kumbar was very this one that sir मैं अकेला करता हूँ, है ना? The project topic shall be approved by the HOD or the institution. Project work student shall be related to pharmacy practice in community, hospital, clinical setup. It can be because it can be related to drug utilization reviews, pharmacoepidemiology, pharmacovigilance or pharmacoeconomics. Anything you can make. Project work shall be approved by the institutional ethics committee. Student shall present at least 3 seminars, one in the beginning, one at the middle and one at the end of project work. 2-page write-up of project. These are the methodology of the projects, how the report should be there, this font size, etc. and evaluation, what are the things. So this is very clearly given what the project should have. Okay. Now in that cases, I think it's clear. Yes, sir. Okay. Sir, if the procedure and protocol remains the same as for the last year for the thesis, then how can it be completed within 3 months from No, here onward? see, procedure is you make. Protocol is you are making protocol. Yes, Is sir. one No, thing. protocol means Second thing, let me the answer one by documentation. one. Second thing is, when it is said from the starting of that, so when you will reaching to the hospital, if you are not knowing, let me give you the example of one class. The second batch, that was batch of Nikita Kantak and that Vishal Naravade.
and Swapnil Labde. That batch was there. So the first batch, hospital has not asked for any kind of ethics committee permission when I was not there actually. I joined in 2016. So in 2016, this batch came for fifth year, Vishal Naravade and all these students. So this batch has got a problem that there was change in the hospital setup, and they asked that without ethics committee we shall not permit. Then whole procedure was to be repeated somewhere in January. And then they have completed some of the work. I'm sorry, they have completed the work, they submitted the thesis, and when the signature time came, then it was refused that since it has no permission, how we can do it. So we requested university that this has happened, and since this is the fifth year, before sixth year, in sixth year you don't have any other work. So that was these students, they gave examination somewhere in November, that is when they were in the sixth year. They gave some examination somewhere in September of that year. So already other exam were over by May and June, but this thesis examination they give in somewhere September. So you should not worry about this thing. Only thing is, until and unless you reach to hospital, how you are going to complete project? This is actually the situation. Okay, okay. You Hello. understood? Means, sir, the schedule will Huh. postpone after May too. There is chances because there are every chances, because if nothing has started, no other thing has started so far. So there are every chances that everything will be postponed. सर हेलो. हाँ बोल प्रदीप, बोल ऐकते मी. हाँ सर, पर अगर अब आपने अभी बोला ना कि जनवरी में इस कमेटी की मीटिंग होती है, तो फिर प्रोटोकॉल सर कब सबमिट करेंगे? और अगर जनवरी के मीटिंग में नहीं किया तो फिर बाद में तो अगले साल अगस्त या सितंबर में नहीं, आएगा. मैंने अभी क्या बोला, तूने नहीं सुना ना प्रदीप. मैंने ये बोला कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, साल में कम से कम 2 या 3 बार प्रोटोकॉल की मीटिंग होती हाँ ना, 2 बार ना सर, सीनियर भी बोलते हैं 2 बार होता है, अगस्त में और सितंबर में कुछ तो, और एक जनवरी में. हाँ, तो अगर मान फिर लो अभी तो सर दिसंबर चल रहा है, अभी टॉपिक भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो नहीं, फिर तो प्रोटोकॉल वो बनाने में सर 20-25 दिन तो लगेंगे ही ना. नहीं, तो इसके लिए क्या करो आप, अपने 20 दिन 15 दिन तो लग सकते हैं, ऐसा हाँ कोई सवाल मतलब सर नहीं. वही ना, 15-20 दिन पर अगर पता तो चलना चाहिए ना कि पर इस सुनो कमेटी की ना, मीटिंग सुनो कब ना, है. ये टेंटेटिव डेट्स है कि सितंबर और जनवरी में एथिक्स कमेटी की मीटिंग होती है. देर आर मेनी टाइम्स कि उससे ज़्यादा भी होती है. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि उतनी ही कम होती है. हाँ नहीं, मतलब क्या होगा सर, अगर जनवरी भी चला गया तो फिर अगले साल वैसे तो हमारा 1 साल वेस्ट होगा ना. नहीं, तुम्हारा साल नहीं वेस्ट होने देंगे, यही तो हम बता रहे तुमको कि हाँ, क्योंकि जो सर घर वाले तो विशाल नरोड़े की बैच जो है, ए, तुम लोग कुछ भी सिक्स में मान लो प्रोजेक्ट को दिक्कत भी आई, तो 6 में जाने में तुमको कोई दिक्कत नहीं है. आप समझे कि नहीं समझे? यस सर. है ना? प्रोजेक्ट वर्क फिफ्थ ईयर में भी कंटिन्यू होगा, एग्जाम मई में हुई तो भी. हाँ, अगर मान लो आपको इथिक्स कमेटी की परमिशन नहीं मिली, पर आपको बाकी की चीज़ें मिल गई, आप क्या कर सकते हो? डेटा विदाउट ये ग्राउंड पे ये भी कर सकते हो, अगर हॉस्पिटल अलाउ करते तो हम बात करके देखेंगे कि जब परमिशन मिले तो उतना डेटा आप ये करेंगे, बाकी का डेटा उसमें जितना डेटा को परमिशन मिलेगी इथिक्स कमेटी से, उतना ही डेटा आप थीसिस में डालोगे, और उस हिसाब से प्रोजेक्ट वर्क अपन शुरू करा सकते हैं. यस सर. है ना? दूसरी हाँ वही हाँ बोल प्रदीप, ऐकतोय. वही सर बोल रहे थे कि एक बार मतलब हॉस्पिटल में कुछ कैसा देख हाँ, हॉस्पिटल में भी जाने में दिक्कत ये थी बेटा, अभी तक कल तक तो मेजर पूरा मेडिसिन डिपार्टमेंट कोविड वार्ड था. अभी कुछ दिन पहले, 8-10 दिन पहले उन्होंने, पेशेंट्स कम हुए तो उन्होंने शिफ्ट किया. अपने शायद आकाश कासारे नहीं है क्या यहाँ? आकाश है क्या? आकाश कासारे ने हेलो. हाँ हेलो. हाँ सर, सुना ही नहीं Yes. दिया. हाँ, बीच में कनेक्टिविटी गई थी मेरी, वही मैं हाँ. बोलने वाला था. तो आकाश कासारे जाता है, मैंने जहाँ तक मेरी जानकारी, आकाश कासारे वहाँ किसी क्लिनिकल ट्रायल में हेल्प करने के लिए जाता है. आकाश एंड मनीष सर. हाँ, तो ये उनसे भी मैंने किया था कि मोस्टली अभी रिसेंटली मेडिसिन वापस शुरू हो रहा है. अभी तक तो मेडिसिन में भी कुछ नहीं था, समझा? तो मेडिसिन, अगर मेडिसिन पूरा डिपार्टमेंट कोविड वार्ड बना तो आपको करेंगे क्या? आपको कोविड वार्ड में तो ले नहीं सकते वो लोग. यस सर, दैट्स ट्रू. हाँ,
तो Yes, ये सब सिचुएशन देखते हुए अपन कुछ कर नहीं पा रहे थे। वापस अपनी क्या बोलते हैं, निकिता मैडम भी जाती है, निकिता मैडम ने भी कहा है कि रिसेंटली गया है अभी, बिकॉज ऑफ ऑल सिचुएशन मेडिसिन में पेशेंट भी बहुत कम है, तो अभी उस सिचुएशन में प्रोजेक्ट देते वक्त भी उनको थोड़ी सी दिक्कतें होंगी कि प्रोजेक्ट्स कैसा दिया जाए, क्योंकि पेशेंट्स कौन से ज़्यादा है। पहले तो इतने भरे भरे रहते थे कि जिसको ये नहीं थी, अभी उस हिसाब से प्रोजेक्ट में भी चेंजेस होगी। और उसको मान लो अगर नहीं दिया तो अपन एक, जब आप लोग यहाँ ज्वाइन हो जाएंगे तो कुछ और सोचेंगे अपन की जो आपके प्रोजेक्ट में होगा, और कुछ नया सोल्यूशन कर सकेंगे, उसके ऊपर एक सोच होगी। बट जब तक आप घर पे है, क्योंकि मान लो आपके ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप का एक मेंबर कहाँ है, ग्रुप का एक मेंबर कहाँ है, प्रोजेक्ट कहाँ होगा, तो ये सब दिक्कतें आप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। Yes, that's true. So in that conditions, once you come, once it is officially we received any permission that yes, you can call all the students can very well come over here. Within 6 to 8 days, we shall see that we are working on it. We are making everything there, because groundwork we are doing. Only thing is permission from hospital and the next things. These are what important things. Yes, Pradeep, any other thing? नो सर, यही डाउट था कि काम का मतलब साल वेस्ट जाएगा, इसलिए पूछ रहा नहीं, था मैं साल बात। तुम्हारा उस कारण पे नहीं वेस्ट होने देंगे कि भाई तुम्हारा हाँ ये वही नहीं ना, हुआ क्योंकि ऐसा। अगर मैंने जानेवारी कहा का ना खत्म कि तुम्हारा अगर ऐसा है। दूसरा मैं तुमको सजेस्ट क्या करने वाला था कि तुम्हारे जितने भी सीनियर्स हैं उनको आप रिक्वेस्ट करो, उनका प्रोटोकॉल और थीसिस सॉफ्ट कॉपीज होगी उनके पास। हाँ देखा है सर वो हमने। हाँ, तो फिर वो उसका एक ऑब्जर्वेशन कर लो, एक स्टडी कर लो कि टॉपिक देने के बाद प्रोटोकॉल कैसे बनाते हैं और डिजर्टेशन कैसे लिखते हैं। तो क्या होगा कि तुमको एक आइडिया रहेगी, तो प्रोटोकॉल बनाने में फास्ट काम होगा तुम्हारा। नहीं सर, वो देख लिया है सब। हाँ चलो बढ़िया, सबने देखा है तो बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं देखा तो जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। हाँ क्योंकि सर बाकी कॉलेज का भी अब कुछ कुछ तो फार्मडी कॉलेज वालों ने भी फर्स्ट सेशनल ले ली, और हमारे तो सर अभी लेक्चर एक भी नहीं हुआ 5th ईयर का। तुम्हारे 5th ईयर के कुछ लेक्चर जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कुछ असाइन किए थे। देखो अभी प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट से क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं आई, क्योंकि तुम लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, जो मैं भी ऑब्जर्व कर रहा था, पर हम लोग ज़्यादा उसको सोल्यूशन हमारे पास नहीं थे। डिस्पाइट ऑल स्ट्रिंजेंट थिंग्स कि हम लोग देखते थे कि कुछ जो CHB के टीचर्स हैं वो या तो पूरा नहीं पढ़ाते थे या तो बहुत सुपरफिशियल पढ़ाते थे, व्हाट्सएवर ऐसा है। तो ये अगर होता है, जबकि हम कॉलेज में हैं, हम ध्यान दे सकते हैं, तो ऑनलाइन का कौन करेगा। सर अभी नहीं वैसा नहीं सर, अब कैसे अगर कोई पढ़ाने वाला होता है ना तो बच्चे पढ़ते हैं तो है वैसे, मतलब अब तो सुनना, मेरी 6 महीने मेरी से। मेरी पूरी बात सुनना प्रदीप। हाँ हाँ बात क्या हो रही है कि गवर्नमेंट ने इस साल की ऑनलाइन को मॉनिटरिंग पॉसिबल नहीं है, पर्टिकुलर CHB का, इसलिए गवर्नमेंट ने इस बार जब तक वो क्लैरिटी नहीं आए तब तक मॉनिटरिंग की या नहीं है, तो ऑनलाइन शायद CHB की परमिशन तब तक नहीं मिलेगी। इस पहली चीज़ हमने पूरी प्रोसेस करके रखी थी। ओंकार के जब मुझे फ़ोन थे तो हम लोग बहुत पॉजिटिव ये थे कि हमने उनकी एडवर्टाइजमेंट निकाल दी, इंटरव्यू ले ले, सिलेक्शन करके रखा, इवन सब्जेक्ट एलोकेशन की बात करके रखी थी हमने। पर हमारी दिक्कत ये होने लगी कि जब उधर से परमिशन नहीं आती, अगर परमिशन नहीं है तो उनको सैलरी कैसे देंगे। समझे कि नहीं समझे। Yes. तो पेरेंट्स बार बार पूछते हैं क्या सुनो हुआ ना क्या मेरी नहीं। बात। तो हम लोग राह देख रहे थे। उसके बाद एक डिसीजन ऐसा हुआ कि वैसे नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, जैसे तुमने पिछले साल देखा था कि मेरे पास तुम्हारा प्रैक्टिकल था खाली, है ना, और कुछ लोगों के पास थ्योरी थी, ऐसा कुछ थे। तो हमारा एक वर्कलोड होता है, हर एक आदमी ने कितना लेना चाहिए। तो उस वर्कलोड के हिसाब से हमारा जो असाइनमेंट हुआ था कि कुछ प्रैक्टिकल्स हुए थे। फिर जब हमने देखा कि अभी भी टाइम है, अभी भी प्रैक्टिकल शुरू नहीं हो रहे हैं, तो जबकि जो टॉपिक मेरे नहीं थे, कि जो सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ा रहा था, वैसे सबको दिया गया है। एग्जाम्पल मेरे को दिया गया था सिर्फ फार्मेकोलॉजी के 2nd ईयर की थ्योरी, 4th ईयर का प्रैक्टिकल थेराप्यूटिक्स का, और कोई एक आध दो टॉपिक थे, APHE की प्रैक्टिकल थे। फिर हमने, सर ने बहुत अच्छे से प्लान किया, मौर्य सर ने बोला कि वॉलंटरीली आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आई सजेस्ट यू दैट एवरीबडी शुड टेक सम एडिशनल वन। तो जो टॉपिक हमारे पास नहीं दिए गए थे, जो नॉर्मली मान लो अभी 4th ईयर का फार्माकोथेरापेटिक्स, ये कौन पढ़ाते थे आपको, शेळके सर पढ़ाते थे, और शेळके सर के नाम को हमने असाइन भी कर दिया था। पर अभी ये मैंने शुरू कर दिया,
सेकेंड ईयर का थेरापेटिक्स मैंने शुरू कर दिया, बराबर। तो ऐसे Yes. कुछ कुछ टॉपिक्स है। वैसे तुम्हारे भी फिफ्थ के मेरे हिसाब से कुछ सर लेने वाले हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स वगैरह के, मोस्ट प्रोबेबली मौर्य सर ने लेने वाले, जैसे भी वो फ्री Yes, sir. होंगे। He did ask us that should he take those lectures. फाइन देन, मतलब ये क्लियर हो गया आपको। तो कुछ लेक्चर्स सर लेने वाले थे, तो मोस्ट प्रोबेबली जैसे भी फ्री होंगे तो आपके भी क्लासेस सर शुरू कर देंगे, प्रदीप, ओंकार, हाँ सर। है ना। तो Yes, sir. दिस इज हाउ वी आर गोइंग फॉर कि जब तक वहाँ से नहीं आती है, एक्चुअली नॉट ऑल कॉलेजेस आर डूइंग दिस, लेट मी टेल यू। ये सब लोग नहीं कर रहे। ये हमारे सर ने बोला कि मैं भी लेने को तैयार हूँ, मैं भी अपना सब ये करके मैं कुछ लूँगा, तुम लोग भी लो, और अपन जितना खींच सकते हैं, जितना मैक्सिमम अपन बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं, वी शिल ट्राई। तो लगभग हर एक ने दो दो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो दो दिए थे, उसके अलावा दो दो हर एक ने ये किए, जो जिसको ये थे। तो हाँ, पर सबको सर हाँ हमारा तो फिफ्थ ईयर तो हमारा सर मेन ईयर है ना, तो अभी 6 महीने तो ऐसे ही गए सर। फिर नहीं, अब 4-5 महीने में क्या क्या करेंगे फिर हम सर, ऐसा है ना, इसलिए सुन ना मैं बोल मेरी रहा था बात, कि मेरी और एक बात सुन। अभी 4-5 महीने की बात ही नहीं है, लगभग क्या एक्सटेंशन क्या हो रहा है। यूजीसी गाइडलाइन तो बोल रही थी कि दिसंबर टू दिसंबर साल बनाया जाए, समझा। यूनिवर्सिटी से अभी क्लैरिटी नहीं है। मैं नहीं सोचता कि यूनिवर्सिटी आपकी मार्च में मई में या जून में एग्ज़ाम ले सकेगी, आई डोंट नो। अगर लेती है तो फिर अपन उसी हिसाब से प्लान सब करेंगे। हाँ। हेलो, तो वी डू नॉट नो सो फार कि क्या होगा कैसा होगा। अगर ऐसा होता तो 3 दिसंबर आ गई है भैया अभी। पिछले साल का किसी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया यूनिवर्सिटी से। दूसरा अगर है तो सेमेस्टर वालों की सिस्टम शुरू हो जानी चाहिए थी, Yes, sir. जिनके सेमेस्टर क्लासेस हैं। कौन Yes, से? sir. B.Pharm for बी B.Pharm. फार्म वालों के, उनके सेमेस्टर वालों के, बी फार्म के फाइनल ईयर के अभी रिजल्ट नहीं है यूनिवर्सिटी से। प्रदीप, ओंकार, हाँ सर, समझ रहे हैं ना। यस। हाँ। तो नॉर्मली अगर तुमने पिछले कभी अनुभव किया होगा तो नॉर्मली दिसंबर में, नवंबर एंड में, लगभग 25 नवंबर के बाद, दिवाली छुट्टियों के तुरंत बाद, रादर दिवाली छुट्टियां पूरी हम लोग लेते थे, जो भी होगी उसके बाद जब दिवाली छुट्टी से आते थे तो उनकी प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाती थी यूनिवर्सिटी की, सेमेस्टर वालों की। हाँ। बराबर है ना। यस सर। यस सर। उनके फॉर्म अभी तक नहीं भरे गए हैं बेटा, तो तुम्हारा साल कैसे जाएगा। यस सर। तुम्हारे मन Yes. की वो शंका निकल गई अभी। हाँ सर। हम्म, चलो, और कुछ है तुम्हारे मन में। तो फिर अब कब मतलब लेक्चर और थीसिस का स्टार्ट होगा। वही ना प्रदीप, कि जब तुम लोग यहाँ आने की परमिशन मिलेगी, जब हाँ। गवर्नमेंट से क्लैरिटी हो जाएगी। तो अगर तुमने देखा होगा स्कूल के लिए भी बहुत सारे आगे हुआ पीछे हुआ। तुम लोग अगर कहीं न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अभी रिसेंटली 3 दिन पहले ऐसा हुआ कि उन्होंने पूरा कलेक्टर पे छोड़ दिया। उसके ऊपर व्हाट्सएप पे एक बहुत बड़ा जोक घूम रहा है, जो मैं तुमको ओरली बताता हूँ कि जब कुछ भी चीज़ें शुरू करने की बात आ रही है क्लासेस की और एकेडमिक्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है स्टेट गवर्नमेंट शुड डिसाइड, स्टेट गवर्नमेंट बोलता है कि द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड डिस्ट्राई। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बोला कि वो एरिया के जो है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, वो प्रत्येक हर एक जगह पे। तो फिर आखिर लोगों ने पीछे नीचे लिखा कि फिर अभी बोलते हैं कि वो उसने बोला कि प्रिंसिपल ने लेना चाहिए। वो उसके आगे वाले जो लोग हैं उन्होंने ऐड किया एज ए जोक। उन्होंने कहा प्रिंसिपल ने कहा चाहिए। प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं मैं पेरेंट को पूछता हूँ, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में वो भेजना चाहते कि नहीं है। फिर प्रिंसिपल ने जब पालक को पूछा कि क्या तुम्हारा ओपिनियन है, तो वो जोक में उसमें फिर अलग अलग वर्जन्स है। तो एक पॅरेंट बोलता आहे की पोराला आता शाळेची सवय राहिलेली नाही, तो जायचंच नाही म्हणतो. दुसरा म्हणतो की मतलब देर आर मेनी सच वर्जन्स आर देर विच आर मेकिंग सम फन और जोक्स ऑफ. द थिंग इज इम्पॉर्टंट इज everybody is saying that you decide. Now who will decide is the biggest problem. So let that decision come. That if somebody says कि चलो जैसे कॉलेजेस को जब तक अथॉरिटी नहीं आती है ऊपर की, नहीं बोलती कि नहीं तुमको कॉलेज शुरू करना है, सब लोग कॉलेज में तो सब फैकल्टी ही अवेलेबल है, सब लोग रोज़ आ रहे हैं, 11 बजे से 5:30-6 बजे तक है,
लगभग मेरे रोज के 3 क्लासेस रोज रेगुलर हो रहे, 3 आवर्स मेरे रेगुलर कंटिन्यूस है, 2 से 5 तक, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, जिसमें मैं सेकंड ईयर का फार्मेकोलॉजी मैंने ऑलमोस्ट अगस्त से, जैसे हमको टाइम टेबल मिल गया था, मैंने अगस्त से सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का फार्मेकोलॉजी स्टार्ट कर दिया था। तो मेरा ऑलमोस्ट यू वोंट बिलीव सिलेबस में सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ मेरा सीएनएस का, सेकंड ईयर फार्मेकोलॉजी का। अब लेटेस्ट में मुझे फार्मेकोथेरापेटिक्स दिया, तो मैंने फार्मेकोलॉजी साइड में रख के अभी थेरापेटिक्स वीक में कंटिन्यूस कर रहा हूँ। तो दिस इज़ हाउ वी आर वर्किंग एक्चुअली, कि हम लोग ये कर रहे हैं। हो सकता है सर के पास, सर ने भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट लिए हैं, तो सर वो सब्जेक्ट जैसे क्लियर करेंगे उसके बाद सर विल गो फॉर योर टॉपिक्स, बट दिस इज़ व्हाट एडिशनली वी ऑल आर डूइंग। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, अगर मान लो इसके बावजूद भी कुछ बच जाते हैं तो मान लो सर बोलेंगे और किसी को कि भैया चलो थोड़ा अभी और नहीं कोई हो रहा है तो इसको साइड में रख के फिफ्थ ईयर के और ज़्यादा खींचते हैं। दूसरा एक प्रॉब्लम आप समझ रहे हो कि ठीक है आपकी थ्योरी के क्लासेस नहीं हो रहे, मेजर चीज़ और आपके प्रैक्टिकल्स की भी होगी, और सबके प्रैक्टिकल्स है, प्रैक्टिकल्स किसी के नहीं हो रहे। आपके मान लो 2 ही प्रैक्टिकल है, एक क्लर्कशिप और एक प्रोजेक्ट है, और बाकी लोगों के और प्रैक्टिकल की भी एक प्रॉब्लम आएगी, Yes, sir. है कि नहीं? क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल को लिए आएंगे नहीं तो प्रैक्टिकल करेंगे कैसे? तो ये सब चीज़ें बहुत सारी है। वी ऑल आर एक्चुअली वेटिंग, वी आर नॉट क्लियर अबाउट द थिंग्स, क्योंकि अच्छा 50% को बुलाएंगे तो फिर 50% के प्रैक्टिकल कैसे लेंगे? हमारे बहुत सारी, जैसे तुम्हारे मन में शंका है वैसे हमारे भी मन में बहुत सारी शंका है, अगर 50% को बुलाना है तो वी आर एक्चुअली वेटिंग फॉर वेरी क्लियर कट डायरेक्शंस वंस वी रिसीव इट। दूसरा और एक चीज़ क्या है ना कि तुम लोगों ने, यू मस्ट हैव रेड देयर आर वेरी बिग चांसेस ऑफ सेकंड वेव, जो दिल्ली Yes, sir. और दिल्ली और कुछ पर्टिकुलरली तेलंगाना वगैरह में पाया गया था, जिन्होंने स्कूल शुरू की। अब फिर वापस वो एक चक्कर हो जाता है कि समझो मान लो ठीक है प्रिंसिपल ने रिस्क लेके तुमको बुला लिया, तो वेदर ऑल पेरेंट्स विल बी रेडी इज़ वन थिंग, No, sir. whether it will be possible for everyone to do it is second thing, whether they can come down, जिनके कोई गांव है, क्योंकि सभी की जगह से सभी व्हीकल शायद शुरू हो या नहीं है, कुछ लोगों की ट्रेन अगर है तो ट्रेन बहुत लिमिटेड शुरू हुई है। तो इन सर्कमस्टेंसेस में व्हाट आर पेरेंट्स पूछते ठीक है, पर अगर मान लो यहाँ रिस्क की सिचुएशन या अचानक बन जाती है तो कौन कैसे जाएगा, कौन क्या करेगा? दीज आर टू मेनी थिंग्स एक्चुअली टू प्लान अकॉर्डिंगली। तो जब क्लियर हो जाएगा, गवर्नमेंट बोलेगा लेना ही है, जिसका उसका अपना अपना रिस्क लेके आना ही है बच्चों ने, तो ठीक है। अभी हम बोलेंगे कि नहीं आ जाओ, तो वापस लोगों के सवाल होंगे हम लोगों को कि इसकी रिस्क कौन लेगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा। अभी हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट का आ गया तो हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट ने बोला है भाई आ जा, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं। अभी गवर्नमेंट क्या बोलता है कि एवरीबडी इज सेलिंग कि कलेक्टर हैज़ टू टेक डिसीजन। कलेक्टर, हाउ कलेक्टर कैन डिसाइड, बिकॉज ही इज़ नॉट अवेयर कि व्हाट विल बी हैपनिंग। और 2-4 पेशेंट अगर अचानक बढ़ गए और उन्होंने अगर बड़े एरिया में वो मूव हो गए, Spread. तो स्प्रेडिंग कैन बी टू मच, वी नेवर नो अबाउट इट। सो Yes, sir, that's दिस इज एक्चुअली द सिचुएशन। So again you have to think over this. Suppose if you will wish to come, then what will be your circumstances, whether all girls and boys, because we cannot keep it कि अगर 4 लोग नहीं आ सकते हैं यहाँ, कोई इट इज़ नॉट अ इलेक्शन थिंग लाइक कि तुम्हारे 20-22 लोग हैं, 22 में से सर 15 आ सकते हैं, 5 बिल्कुल नहीं आ सकते, तो उन 5 के लिए भी अपने को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऑल आर देयर ना, वी आर ऑल आर इक्वल फॉर अस। अगर उन 5 को डिफ़िकल्टीज़ है तो देन व्हाट वे वी कैन सॉर्ट इट आउट, ये एक चीज़ अपने को सोचनी पड़ेगी। और वैसे भी सर की जैसे क्लास शुरू होगी, व्हेन एवर यू कैन हैव दिस सेशन, ऐसा भी आप कर सकते हैं चाहिए तो, और ओपिनियन सर का भी हो जाएगा। सो साइमल्टेनियसली इट विल हेल्प यू टू गेट द थिंग्स वेरी क्लियर। एनी अदर थिंग यू फील? सर रिगार्डिंग थेसिस, आपने एक पीडीएफ भेजा था इसके पहले कि उसमें मेंशन किया था कि स्टडी प्रोस्पेक्टिव नहीं होगी, रेट्रोस्पेक्टिव होगी करके। तो नहीं, प्रोस्पेक्टिव में इंटरवेंशनल नहीं हो सकती। प्रोस्पेक्टिव आप जो है हो सकती है, आप ड्रग का इंटरवेंशन वगैरह जो चीज़ होती है ना, वो नहीं होती है। रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव बहुत सारी बार इजी पड़ता है, बट वी नेवर फोर्स कि अपने यहाँ प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है।
जैसे 2 साल पहले जो ग्रुप था मेरे अंडर काम कर रहा था, दे डिड प्रोस्पेक्टिव स्टडी. एग्जाम्पल, दे वर्क ऑन वेरियस एरोसोल्स जो होते हैं ना, इनहेलर्स. तो इनहेलर्स ने दे हैव दोज वे आर डायग्नोस्ड विथ अस्थमा. तो उनसे उन्होंने क्वेश्चनर में पूछा कि वो कैसा यूज़ करते हैं. तो उन्होंने उनके एरर पॉइंट्स निकाले कि अगर वो ऐसा यूज़ करते हैं तो देर आर एरर्स. If it is error, then it is not a compliance. If it is not a compliance, then they will go for counseling and guidance, and then they will check about what is the improvement in that. So this kind of thing is there. That way we can call it as a counseling, as a intervention. तो इस टाइप की, but we cannot have any kind of drug intervention, है ना, because we are not authorized to do it. But counseling wise, yes, that kind of project was given 2 years back. तो नॉर्मली प्रोस्पेक्टिव में मतलब कंटिन्यूस में दे सकते हैं, बट यूजुअली इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस रेट्रोस्पेक्टिव देते हैं. तो रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होती है कि तुम्हारे पास डेटा वहाँ हॉस्पिटल में जो रहता है उस साल का रहता है, वहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ से आपको लेना है और उस डेटा पे से आपको करना है. जो पिछले साल वाला मेरा ग्रुप था उनका इट वाज प्रोस्पेक्टिव ओनली, क्योंकि वो जो पेशेंट आते थे इसमें क्या बोलते हैं आईसीयू में, तो आईसीयू में उनकी क्या कंडीशन है, बट नो इंटरवेंशन. दे वेर नॉट डूइंग एनी, दे वेर, इट वाज ओनली सॉर्ट ऑफ फार्माकोएपिडेमियोलॉजिकल स्टडी कि पेशेंट क्या है, उनकी कैटेगरी क्या है, उनकी कौन सी कंडीशन में प्रोग्नोसिस क्या होता है. सो दैट वाज काइंड ऑफ स्टडी. तो स्टडीज़ आर, बट यस, हॉस्पिटल को डर ये है कि आपके अगर इस टाइप की स्टडी हो जाती हैं जो सॉर्ट ऑफ इंटरवेंशन है जो आपके लिए फिजिबल नहीं है और जिसके लिए यू आर नॉट क्वालिफाइड, देन दे वोंट अलाउ यू टू इन दिस क्लिनिकल दिस, ये क्या बोलते हैं, आपका प्रोटोकॉल वो सैंक्शन नहीं करेंगे, है ना. Yes, sir. But then definitely the doctors are there because the protocols they are giving on that lines only. जो भी प्रोटोकॉल आपको दिए जाएंगे वो ऐसे दिए जाएंगे कि आपके एथिक्स कमेटी में प्रोटोकॉल प्रॉब्लम नहीं आए. यस प्रदीप. ओंकार. यस सर. एनी अदर थिंग यू फील? सर ऐसा हो सकता है क्या, मतलब अभी हम रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करने वाले हैं ना, तो ऑलरेडी जो हॉस्पिटल में डाटा है वो अगर वही दिया है मिलेगा ना. कि रेट्रोस्पेक्टिव मतलब ऑलरेडी जो डेटा है वही वही हाँ रहेगा. सर, फिर सर हॉस्पिटल को हेलो को जाने की क्या जरूरत है फिर. हाँ, हेलो. हाँ सर, अगर डेटा मिल जाए अगर मतलब किसी भी ग्रुप को, तो सर फिर हॉस्पिटल में जाने की क्या जरूरत पड़ेगी उनको. नहीं जाना तो पड़ेगा ही ना बेटा. हॉस्पिटल का डेटा हाँ तो कोई तुमको घर पे भेजेगा नहीं, पहली चीज. हाँ, नहीं मतलब एक बार दूसरी अगर चीज, जाके जो नहीं प्रीवियस डेटा सर उधर सेव होता है ना हॉस्पिटल में, तो डेटा अगर एक नहीं ग्रुप नहीं जाके नहीं, सुन, जब तक तुमको तुम्हारा प्रोटोकॉल सैंक्शन नहीं होता है तब तक तुमको रेट्रोस्पेक्टिव का डेटा कैसे देंगे वो, पहली चीज. दूसरी चीज, प्रोटोकॉल सैंक्शन के लिए मान हाँ लो, वही ना सर, मैं भी वही बोल रहा हूँ. क्या अभी जो जनवरी में है ना एथिक्स कमेटी, हाँ सुन रहा हूँ ना, बोल. हाँ अभी जनवरी में सर मीटिंग है ना, तो अभी उसमें प्रोटोकॉल मतलब सबमिट कर लेंगे, तो उसके बाद तो दे देंगे ना रेट्रोस्पेक्टिव के लिए डाटा. हाँ तो डाटा रेट्रोस्पेक्टिव के लिए किसी एक को कैसे देंगे, और इतना एक आदमी डेटा कहाँ से लेगा, इतना पॉसिबल कहाँ से होगा मतलब किसी एक उधर को सबके लिए डेटा उधर लेने का. सेव होता है ना सर, किसमें? उधर उनके कंप्यूटर में वगैरह सेव होगा कंप्यूटर ना. तो कंप्यूटर पास नहीं करते बेटा, सीआरएफ में भरना पड़ेगा. फिर भी तुम्हारे सीनियर से पूछ के देखो तुम क्या होता है, वो तुमको गाइड हाँ नहीं, करेंगे. मतलब मुझे ऐसा लगा इसलिए नहीं मैं नहीं, ऐसे एग्री विथ यू, हाँ मैंने इसलिए सुन भी लिया तुम्हारा. हाँ मैं तुमको काउंटर नहीं कर रहा हूँ, और तुमने हाँ सोचना भी इट्स गुड गुड थिंग. आई एम नॉट यू नो हाँ, क्योंकि सर काउंटरिंग इट. अभी पेरेंट्स तो बार बार पूछ रहे हैं यार कब शुरू होगा तुम्हारा, मतलब सर मेरा भाई भी अभी है तो उनका तो सब मतलब उन मिड टाइम एग्जाम ही हो गए सर उनकी. कहाँ पे? वो इधर इंजीनियरिंग को है, इधर हमारे इधर है कोल्हापुर में. अच्छा, नहीं वही मैं बोल रहा हूँ कि सम केसेस वेयर यू नीड टू गो देन यू नीड टू गो. हाँ बहुत कम जगह पे ऐसा हुआ है, बाकी अभी तक अपने, जहाँ तक मैंने देखा है अपने एरिया में, मैंने किसी को शुरू होते नहीं देखा है, हाँ है ना. औरंगाबाद ठीक साइड है. में मैंने किसी को, हो सकता है उन्होंने या तो कॉलेज ने अपने रिस्क पे, प्राइवेट अगर होगा तो हो सकता है उन्होंने अपने नहीं रिस्क पे. उन्होंने ऑनलाइन ऑनलाइन ही ले रहे हैं सर.
हाँ They तो only have online classes, sir. तो ऑनलाइन क्लासेस में ऑनलाइन ही एग्जाम ले ली उन्होंने। हाँ तो that these are the thing, but then again whether our university is going to do it, that is again another story ना। अपनी हाँ हाँ यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर की तो ली है ऑनलाइन, अभी उसके रिजल्ट नहीं है। ऑनलाइन के तो वैसे फास्ट होने चाहिए। अभी पिछले साल वाले कोई रिजल्ट नहीं आए। फिफ्थ ईयर वालों के मुझे बहुत सारे फ़ोन कंटिन्यूस आ रहे हैं या मैसेज आ रहे हैं, सर अभी हमारे रिजल्ट का क्या हुआ। उनसे पहले बी फॉर्म वाले बेचारे रो रहे हैं, उन्होंने एम फॉर्म में एडमिशन ले ली, तो उनको प्रॉब्लम है कि रिज़ल्ट जब तक नहीं आए तब तक सामने वाले कॉलेज उनको अभी बोल रहे कि अभी रिज़ल्ट कब दोगे करके, तुमने तो जीपैट के बेस पे ले ली करके। तो वो रिज़ल्ट आएंगे, फिर तुम्हारे एग्ज़ाम, और यूनिवर्सिटी ने ली अगर होगी तो सेमेस्टर पैटर्न की एग्ज़ाम कैसे ली आई डोंट नो, कौन सी ली वो भी देखनी पड़ेगी। वो ये ली कि उन्होंने पिछले जो जून में लेने वाली थी वो ली है, दैट हैज़ टू बी चेक्ड, सर वो या इंटरनल ली। एटोनॉम उनका एटोनॉमस से तो खुद ही हाँ डिसीजन तो वो लेते हैं फ़र्क सर। है, ऑटोनॉमस का वो डिसीजन, वही तो फ़र्क पड़ता है ना। वो जैसे कैटेगरी चेंज होगी ना प्रदीप, हाँ जो ऑटोनॉमस है उसको ऑटोनॉमी है डिसीजन लेने की। हाँ हम लोग ऑटोनॉमस नहीं है ना, हमको यूनिवर्सिटी का सुनना है, हमको गवर्नमेंट का सुनना है। आप समझे कि नहीं समझे? यस सर यस। Yes, sir. तो if it is autonomous then they can decide, they can plan accordingly, they can even plan their examinations because degree they have to give, वो अपनी इसका एग्ज़ाम का सिस्टम चेक कर सकते हैं। मैं तुमको एक बात बताता हूँ, मेरा भतीजा बेंगलोर में है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनकी भी शायद यूनिवर्सिटी हो गई है या रिसेंटली हुई है व्हाट्सएवर, तो उनका ऑटोनॉमस है, तो दे वेटेड फॉर फ्यू टाइम एंड देन दे हैव कॉल्ड फॉर एग्जामिनेशन एट बेंगलोर ओनली। तो ये मेरा भतीजा रहता था गुजरात में, वहाँ से ही हैज़ टू फ्लाई, दिवाली के तीसरे दिन ही रश टू बेंगलोर, है ना। सो दीज आर द सिचुएशंस, वी नेवर नो। वो ऑटोनॉमस है, उसके बावजूद भी उन्होंने बोला कि बच्चों ने कॉलेज में ही आना है, और बच्चों को कंपल्सन किया कि यहीं से अभी टेस्ट करके तुम सर्टिफिकेट लाओ इसका कि कोविड COVID नेगेटिव है, negative report. Mm. ऐसा। So these are the situation actually. So these are the guidelines. Everybody has to see, everybody has to set it accordingly. And accordingly once it is there, ये तुम्हारे अकेले के लिए नहीं होगा, फिर होगा तो अच्छा ऐसा भी नहीं कर सकते हम, फिफ्थ को बुलाते हैं तो फिर बी फॉर्म फाइनल ईयर को भी कम से कम मिनिमम उनको भी बुलाना चाहिए कि उनका भी फाइनल ईयर है। तो बुलाए तो फिर किसको किसको बुलाए कॉलेज में, ऐसा सब हो जाती है। और 50 गवर्नमेंट ने मतलब यूजीसी ने बोला 50% में बी कॉल्ड। So these are all difficulties. I hope maybe within this few days, because what I came to know is everybody at higher level they were waiting for the outcome after Diwali, because during Diwali there was too much crowding. Over. Yeah. There was too much crowding. There were big chances of this. One more thing you must not be knowing actually. 3 days back we lost our one of the peon. तुमको मालूम थे जगदीश टाक मालूम थे मोटे से? एनालिसिस लैब कोलॉजी लैब में थे। Ah, yes, sir. Yes, sir. हाँ सर पता है। हाँ, he passed away 3 days back with COVID. No, sir. We didn't know about that. Most probably his father passed away 4 or 5 days before that, and then he was already obese. ये जो जगदीश टाक थे वो मोटे से थे, you must have seen him. तो बहुत सारे लोग अपने यहाँ से फिनरल में भी गए थे उनके फादर के, और जब आए 2 दिन तो कुछ मालूम नहीं पड़ा। तीसरे दिन somebody told that he got some severe condition, he was rushed to Ghati, but somewhere at midnight, somewhere at 4 a.m. 2 days back he passed away, 2 or 3 days back. So these are the condition, friends. Everybody is shocked in college because he was there in college just before death of his father. Everybody got suspicious. Then what is the condition? अच्छा कोई भी रहा तो वो मास्क कब कोई ऊपर कर देगा भरोसा नहीं है, अभी भी Yes, मास्क की सिचुएशन ऐसी है। So these are the actually concern. I hope you will understand the difficulties. Means we are also facing similar difficulties actually. We are at the same situation. So it is not that college does not wish it, because anyway college everybody is coming to college. It's not like that. But then the thing is how we can put everybody into risk.
So many students are there, we do not know from which place, in what condition students are coming, even during traveling how they are coming. So okay, so far only we teaching non-teaching staff and only MPharm students are there. Again they are confined to areas of their laboratories, they are separated. But if number of student increases, and I am sitting in my room, all faculty they have got their separate rooms or at least distant places to sit and work. Now in that condition, if so many students come, then what are the situations? Because these are all things we have to think about, and accordingly how we can plan, how, because these are all things. I hope you understand. Yes, sir. Any other thing in your mind? No, sir. So you just I'll recommend you please go through various kind of studies. You can refer various articles, you can refer all your seniors this thesis, so that at least it will give you idea how to write protocol. Protocol writing is not very big story. Once you get you read various things, you will get the formats from everybody, from all groups. If possible you can get it. So protocols will be easily available, at least the prototype or formats will be available. Once you get the project, then what is important is particularly you have to devise your own case report form for that particular case, for that particular conditions. So on that, how to devise case report, again with thesis and protocols, you can have the copies of that. Or I feel most of the thesis they have put in protocols and case report forms into it. So from that you can get it. Once you get it, then you go through it, you thoroughly read it, everything including statistics application and all, then it will be clear for you that what are the situations. And once you are ready with it, you will put a little time into it. One more thing I'll suggest is group wise. I have told you, you select group in such a way where you can work in very good cooperation with each other. So if it is so, once you all are coming, then I think it should take within 2 to 3 days, because you know basic idea, you know what words are there in protocol, what kind of study is there. Once guide suggests you, immediately go for referencing of that particular topic. If this topic is showing like this, read, go through good articles. You can use good services, net services like PubMed, Google Scholar. These are very good services. They can show so many articles. So on that basis you go through this, you can have the copies of that, and maximum 3 to 4 days you will take. Once the protocol you can get it, okay. And then it becomes easy. I don't think it will be a difficulty for you. So I think all the best, and take care, be safe. If you have any other doubt, you can definitely, we can have such sessions whenever possible. Nobody is refraining, nobody is going away, but only thing is that the situation is very difficult. As I told you, there is everybody was shocked when we came to know about this incidents, about one person who was already working over here. He was part of so many activities, and just 2 deaths in his family, his father and he, and somebody again is positive, I suppose, but maybe out of danger now. So in that conditions, these are the difficulties we have. You can understand this, and you can have dialogue with other people also whenever you wish, and let us hope for the best. If you have any difficulties, don't worry, we are always there. We can have discussions, and we can go for alternative. Let us wait for some 8-10 days or 15 days, what other solutions are coming out. Once the solution is there, that will be definitely working, helping us. If not, then let us see in what way what other way we can work. Okay, I hope I have satisfied your queries. Yes, sir. Yes, sir. Pradeep, Yes, sir. Omkar, Yes, sir. chalo. Yes, sir. So take care, all the best. But see, one suggestion I have, Omkar, everybody actually, those who are listening, what I am suggesting is, see, don't sit idle.
please read even what's your topic you have got, you can read through it. As such, whenever I get some information about any such good seminar or something, I used to forward you. Try Yes, to sir. attend it, because these are good one. Then second thing is, you can request your seniors who are working in industry, because how you can study it. I told 6th year student actually, Maria and all, that they can request their seniors to devote around half an hour, 1 hour, and you can have such a Zoom call or this Google Meet or whatsoever, and you can take their directions. What are the areas, how these are there, or those who are working, and so what are the things which are there, and enrich your knowledge. If you are sitting idle, then there are many things will happen. You may not remain habituated with the studies and topics, and then this idleness may affect you. So you try your best to avoid it. If required, if I am free, you can just invite me. You can start your own seminars also. In 5th year, actually, we had one activity, we call it as a journal club. If you can do it, I'm very sorry to tell you that in last 2 years, people have not done it in what I was expected. Only those who are very enthusiastic, they go for it, they present it. The concept behind journal club is very simple, that you are taking one article which is you liked, where there is all the data is available, and then you read it in such a thorough manner as if you have done it. You go for its cross references, you go for all the things which are there, and you try to present it as if you have done it, and let others ask you that why you have not done this, because this should have been done, this can be done, or how you went for these results. So this all gives you an insight that what can be the idea behind that project, because for any project there should be a problem. Project is not just compiling the data. The basic thing for any kind of project is a problem, that why you want to study, why it's not means, I don't think you should answer it कि हमारे सिलेबस में दिया है इसलिए हम लोग कर रहे हैं. उसके 100 मार्क होते हैं, उसमें से बहुत सारी बार अच्छे अच्छे मार्क मिल जाते हैं, काम करने वाले को भी मिलते हैं, नहीं करने वाले को भी मिलते हैं, इसलिए हमको प्रोजेक्ट चाहिए. सो इट्स नॉट लाइक दैट. आई होप सो. So here what is important is you understand what is the project, what is the problem, कि हमने what this तो you are identifying a problem, उसको क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, या उसको क्या क्या लोगों ने क्या क्या किया है, ये आपने लिटरेचर रिव्यू में देखा, और उसके बाद यू आर ट्राइंग कि हम इससे दूसरा क्या हमने करना है, एंड देन दैट बिकम्स योर प्रोजेक्ट. तो अगर अभी फांडी का है तो छोटा प्रोजेक्ट है, अगर कोई पीएचडी को जाएगा तो बड़ा होगा, प्रॉब्लम बड़ा होगा, उसके सॉल्यूशन ढूंढने के तरीके ज़्यादा होंगे. ओनली थिंग, बट बेसिकली द ट्रैक विच यू आर सेटिंग इन इज अ प्रोजेक्ट. प्रॉब्लम का ट्रैक मालूम पड़ा आपको, डेस्टिनेशन वो प्रॉब्लम है, तो आप उस पे उस साइड की ट्रेन ढूंढ सकते हो. फिर आप अगर जानते हो कि एक जंक्शन पे खड़े हो, वहाँ से 4 जगह पे ट्रेन जाती है, तो आपको कौन सी ट्रेन में जाना है और वो ट्रैक आपको कैसा डेवलप करना है, उस हिसाब से आप ट्रैक द स्टेशंस जिसको आप प्रोटोकॉल में बनाते हैं, you can do it. So you can start with this whenever possible. I'll try to attend if you are planning it. You can start with the journal club. देखते हैं कितने लोग enthusiastic हैं, isn't it? So all the best. You can do it. You can start with it. Whenever you feel, whenever we can have again another dialogue, whenever you wish. So we'll go for another discussion. In the meanwhile, whenever some difficulties you have, I hope I have clarified most of your queries, and if anything is there, you can definitely we can also have another discussion. Okay. So all the best. Take care. Be safe. Nobody should be in any kind of फॉल्स सेंस दैट इट हैज़ गॉन. बहुत सारे लोग बोलते हैं कोरोना गया, पर एक्चुअली कोरोना से गया मालूम पड़ता है फिर बाद में, ऐसा भी एक हो रहा है ना. मैंने Yes, सुना sir. लोगों से बोलते हैं नहीं अभी तो कोरोना गया, कुछ दिनों में मालूम पड़ता कोरोना से गया आदमी. तो Yes, sir. तो टेक केयर, बी सेफ. और तुम बीइंग अ फार्मेसी पीपल, बीइंग अ पीपल फ्रॉम हेल्थ केयर फील्ड,
you can even warn other people, you can guide them that be safe, take care. Chalo, है ना? All the best. Yes, sir. Yes. I think Thank you, sir. should I leave? Yes, sir, you Yes, can. Okay, fine. thank you, Thank you. sir. Thank you, sir.